Hello everyone, welcome back to my channel that is Let Me Learn Chemistry. So last time हमने क्या पढ़ा था? We have studied about the different types of structural isomerism, जिसमें से हमने 3 पढ़ लिए थे और वो 3 कौन से थे हमारे? एक था पोजीशन आइसोमर, एक था हमारा चेन आइसोमर और एक था हमारा फंक्शनल आइसोमर. So generally people don't accept their mistakes, but one thing that I have told you yesterday, one thing wrong, I just want to correct it here. So I have given you the example of the functional isomer, that is this one, and I have told this one is a ether, but so मेरा marker शायद चल नहीं रहा है. So I have told you like this, and मैंने इसको क्या बोला था? I think Easter बोला था. So this is a ether, okay? So as a human, these are the human errors, and human errors क्या है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ईथर और ईस्टर में. These are the big confusion for me. So this is a ether, and हमारा ईस्टर क्या होता है? ईस्टर is our this one. So I hope if you find this mistake, don't be like okay मैम को जो भी है, it's just a little bit confusion for me. सबको कोई ना कोई एक चीज़ होती है जिस पे आदमी को कंफ्यूजन होता है, मेरे लिए शायद ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है. सो दिस इज माय ईथर एंड दिस इज माय ईस्टर. ओके, सो once again I can be sorry for this. Now हमने लास्ट टाइम कौन से 3 आइसोमरिज्म पढ़े थे? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. वन इज माय ब्रांच आइसोमरिज्म, सेकेंड इज पोजिशन, एंड लास्ट वन वाज आवर फंक्शनल. सो ब्रांच में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट द अरेंजमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स, देयर स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट. ओके, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? अगेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, बट द पोजीशंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट. ओके, एंड व्हाट हैपेंस इन द फंक्शनल आइसोमरिज्म? Molecular formula will be same, but the functional group will be different. Now the fourth one, or we can say the second last that we are going to discuss, is our metamerism. So metamerism, it is again a type of the structural isomerism. So metamerism में क्या होता है हमारा कि compounds having same molecular formula. क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का डेफिनेशन क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा. सो जितने भी टाइप के हम फंक्शनल ग्रुप्स लेंगे उनका क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, जो भी हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म लेंगे. सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट the I can say, but the number of carbon atoms of alkyl group will be different on either side of the functional group, on either side of the functional group. What is the definition? Definition क्या कहता है? Compounds having same molecular formula. जितने भी types of structural isomerism है उनके molecular formula क्या है? Same है. So compounds having same molecular formula, लेकिन but जो नंबर ऑफ कार्बन है ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है? विल बी डिफरेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज C4H8O. ठीक है, दिस इज माई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अभी इसे मैं 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप बना सकती हूँ. कैन यू टेल मी विच 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आई कैन मेक फ्रॉम दिस? आई कैन मेक कीटोन एंड आई कैन मेक द अल्डिहाइड. सो ये जो मेटामेरिज्म है ये अल्डिहाइड के लिए काम नहीं करेगा.
बिकॉज अल्डिहाइड के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप नहीं आएंगे। जो अल्डिहाइड है या तो वो एंड में अटैच होगा या तो वो ब्रांच में अटैच होगा, सो दिस विल नॉट वर्क फॉर द अल्डिहाइड। सो दिस molecular formula, this metamerism will work for the ketone. So we can take the example like CH3, CH2, CO, CH3. This is my one structure. Second में let's take this 5 and 10, ठीक है। Okay, now another structure I can draw is CH3, CH2, CH2, CO, CH3. What the difference you can see कि ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है अटैच है, इसके एक साइड में जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, जो जिसके कार्बन number of carbon of alkyl group on this side is 2 and on this side is 2, where in the another structure we can see the number of carbon attached, this is my functional group, and the number of carbon attached on this side is 3 and this side is 1. So क्या हो जाएगा, compounds having same molecular formula but the number of carbon of alkyl group will be different on either side of the functional groups. Molecular formula same है, even functional group भी same है, but जो number of carbon attached of alkyl groups on the either side वो क्या हो जाएंगे, different हो जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 3 और 1 हो गया है। वैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं सपोज 12O का। सो इसमें हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, यही रहेगा 10 रहेगा। एंड आई कैन अटैच द ऑक्सीजन। कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, ये ईथर है कि ईस्टर है, इट इज ईथर। सो क्या हो गया है, इस साइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इस साइड 2 कार्बन है। वही सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक साइड 3 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन। सो दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ अ मेटामेरिज्म। सो मेटामेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इवन फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, पर जो नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं अल्काइल ग्रुप के ऑन ईदर साइड, दोनों के साइड में जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। अगर एक में 2 है तो दूसरे में नंबर ऑफ कार्बन ऑन ईदर साइड विल बी चेंज। नंबर ऑफ कार्बन ऑन ईदर साइड चेंज होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नाम भी चेंज हो जाएगा ना। सो दिस विल बिकम डाइथाइल ईथर और दिस विल बी बिकम मिथाइल क्या हो जाएगा, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, ठीक है। सो यू कैन सी द नेम ऑफ द compounds has also changed. So this is nothing but known as your metamerism. Now the last and the most important and a little bit I think a more different type of the structure isomerism is nothing but known as your tautomerism. क्या बोलते हैं इसको, tautomerism. So what happens in tautomerism, it says that it is a special type of isomer. क्या है ये, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर है, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ओके, इन विच इसमें क्या रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम, क्या रहेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम रहेगा, in which different in the arrangement of atom
atom, but they exist in dynamic equilibrium. इसमें एग्जिस्ट करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. क्या होता है टॉटोमेरिज्म? एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है जिसमें इन विच द एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंटली. क्या रहेंगे? एटम्स डिफरेंटली अरेंज इन, और वी कैन से इन विच डिफरेंटली इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम. एटम का जो अरेंजमेंट रहेगा वो थोड़ा डिफरेंटली रहेगा, बट दे एग्जिस्ट इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन ईच ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे से क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा यहाँ पे CH3 CO and CH3 है. So this will be in the dynamic equilibrium with the CH3 COH double bond CH2. So इधर क्या हो जा रहा है? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इधर जाके डबल बॉन्ड फॉर्म कर दे रहा है, ये एक हाइड्रोजन लेके यहाँ पे OH हो जा रहा है. सो दे आर इक्विलिब्रियम विद, दिस इज अ कीटोन एंड दिस इज अ इनोल. किसका है? अल्कोहल का है ना, इनोल. सो दे आर अ कीटो इनोल इक्विलिब्रियम. इधर क्या हो रहा है? मेरा कीटोन है, ठीक है, मेरा एक फंक्शनल ग्रुप है, एक आइसोमर है, एक कंपाउंड है जो क्या है CH3C CH3OH. सेम है, इनका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम ही है, बट ये क्या हो जा रहा है? डिफरेंटली अरेंजमेंट हो जा रहा है एंड दे आर इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. सो इधर क्या हो रहा है? हमारा कीटोन है, ये किसके इक्विलिब्रियम में है? अल्कोहल के इक्विलिब्रियम में. कैसे? क्या हो गया? इधर पे ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, वो क्या हो रहा है? ब्रेक होके इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा. सो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? अपना एक हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को दे देगा, बिकॉज ये ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है, राइट. सो इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ फॉर्म करके क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 अल्कोहल फॉर्म कर देगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट अ कीटोइनोल एंड दिस इज नथिंग बट नोन एज अ टॉटोमेरिज्म. वी कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ आवर दिस वी कैन से अल्डिहाइड एंड दस अल्कोहल ऑल्सो. अल्डिहाइड एंड अल्कोहल का भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH3 एंड CONH. दिस इज अ अल्डिहाइड. ये क्या है? अल्डिहाइड है एंड इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ, ठीक है, CH3 हो गया. सो ये यहाँ पे क्या करेगा? ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, ओके, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? ये कार्बन अगेन अनस्टेबल, CH3 अगेन स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास 4 से ज़्यादा बॉन्ड हो गए. सो ये क्या करेगा? अपना एक हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को डिलीट कर देगा, बिकॉज इस ऑक्सीजन को भी एक एटम चाहिए. सो इट विल फॉर्म अ CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H, ठीक है, एंड दिस विल बी ऑल्सो इनोल. सो यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म. एक कीटोइनोल का देखते हैं, एक हम अल्डिहाइड एंड इनोल का देखते हैं. सो दीज टू टाइप टॉटोमेरिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट. So when they ask you what is tautomerism, you just have to write it is a very special type of structure isomerism. Of course आप देख रहे हैं बहुत अलग टाइप का structure isomerism है जिसमें क्या हो रहा है? हमारा different in the arrangement of atom. atom का arrangement क्या हो जाता है? वो different हो जाता है, totally different है, but इनके बीच में वो जो भी हम दो कंपाउंड्स ले रहे हैं, अरेंजमेंट भले ही एटम का डिफरेंट हो, बट उन दो कंपाउंड्स के बीच में क्या है? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, देयर इज अ इक्विलिब्रियम. अगर ये हमारा कीटो इनोल में चेंज हो रहा है तो ये इनोल इमीडिएटली हमारा कीटोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है. दिस कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू कीटोन ना. क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड CH2. सो ये मैं बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के. तो ये एक हाइड्रोजन लूज करना चाहेगा, ये भी इसके पास भी 3 बॉन्ड्स रहेंगे, इसको 4 चाहिए, तो ये OH का बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा? हमारा इधर चला जाएगा एंड वी विल गेट द कीटो. Okay, so this is nothing but known as the tautomerism. So have you all understood what is metamerism and tautomerism? These are the little bit different types of structure isomerism. अगर आपको अभी भी डाउट है
What is total? I think I have cleared it, but let's just see one more time. Special type of isomerism जिसमें क्या होता है, different arrangement होता है atoms का. You can see there is different arrangements of the atom. But एक चीज आपको देख रहे होंगे, उनका जो molecular formula है that is same. What is happening here? Their molecular formula is same. That's why it is known as the structural isomerism. Structural isomerism क्या होता है? Molecular formula same होना चाहिए, पर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा. सो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, बट जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो बहुत अलग है नॉर्मल जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखे हैं. बट ये दोनों जो है एक दूसरे से डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इक्विलिब्रियम दे रहे. दैट इफ दिस कैन बी कन्वर्ट इनटू, यू नो, दिस कैन बी आल्सो कन्वर्ट इनटू कीटो. ठीक है. सो ये कैसे हो रहा है? हमारे पास ऑक्सीजन है, बॉन्ड हमने ब्रेक किया, ये कार्बन हमारा अनस्टेबल हो गया. सो ये अपने एक हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन को देख के हमें इनॉल दे देगा. अभी इनॉल लिखा है, व्हाट इट इज इनॉल. इन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. अल्कीन, अल्कीनॉल, रिमेंबर. सो दैट्स व्हाई इट इज इनॉल. ओके. सो हम दो टाइप के टॉटोमेरिज्म देखते हैं नॉर्मली इन योर क्लास, दैट इज कीटो इनॉल एंड सेकंड वन इज aldehyde and enol. I hope now it is clear for you all. If you have any doubt, please put your questions in the comment section and we will discuss it. So thank you all for being with me. Okay, bye bye.